Good afternoon, students. Now we have to learn about next topic, that is non-inverting amplifier. Interesting. प्रॉब्लम सॉल्व किए क्या? अपलोड किए हैं प्रॉब्लम? ओके, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के भी डाले हैं। हाँ, अभी किए नहीं? ये आवाज कट गया आपका, कुछ समझा नहीं। मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा भी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? अभी क्लियर है। Now we are to see the non-inverting amplifier. Up to this point you will have in your exam. Okay, non-inverting amplifier working and its gain and problems based on this. So if we want output signal of the same polarity as the input signal, in the last lecture we discussed, if you want same polarity signal, then either we can use this one or two inverting amplifiers we can use. Two inverting amplifiers or one non-inverting amplifier we can use. So op-amp is connected as non-inverting amplifier as shown in this figure. Now here you can observe input is connected to which terminal? Non-inverting terminal. That's why it is called as non-inverting amplifier. No doubt it is amplifying, but it is not changing the sign. That means whatever you are applying, whether it is AC or DC, if it is AC, like in this case, you will have the same phase. Phase will not be inverted, right? So your input is like this. So the amplified input with the same phase we will get at the output. So if you draw the diagram for input and output, so if your input is this one, positive half cycle first, then your output will also be having same phase. So the starting point of both the waves will be the same. They are crossing this zero line at the same point, but amplified depending on the gain of the circuit. Whatever resistors you are using, depending on that resistors value, the gain will be decided, and that will be input will be amplified. So this is input and this is output. Okay, this is the case of AC. If there is DC, then positive DC input will give you positive DC output. Negative will give you negative DC output, like this, right? So phase change or sign change will not occur in case of non-inverting amplifier. So the input signal is applied to non-inverting input, the output is applied back to the input through the feedback circuit. Now again this is negative feedback because it is connected to inverting amplifier, inverting terminal, right?
the output is fed back to the inverting input. Then this produces negative feedback in the circuit. Note that Ri is grounded. So other terminal, that means which is inverting terminal, which is now not connected to input, it is then grounded. In previous circuit, this non-inverting terminal was grounded and input was supplied to here. So just change the terminal. Okay, this is our construction. Now the derivation. Now voltage across this Ri is V in minus V in minus 0. Abhi, we can change the convention also. I will show you in the diagram. Will not here. Okay. Now the voltage at this point, that means potential at this point is 0, right? And potential at this point is V in. सेम होगा, किसका सेम होगा at this point, due to virtual ground, मतलब वो same potential पे होगा, because there is high input impedance here, so no current will virtually flow here. So both these points are at same potential. Okay, so whatever voltage is here, that will be the same at A point. So VA will be V in, right? So the potential at this point is 0, potential at this point is V in, and potential at this point is V out, right? By using this, we can calculate II and IF, right? So the current flowing through Ri is II, input current. Current flowing through RF is IF. So just write down, both these currents are equal. So voltage between these 2 points, voltage difference, potential difference, we can write like this also. This 0 minus VA divided by Ri. This will be the current flowing through this branch, right? Input branch. And feedback branch, VA minus V out divided by what? RF, right? Like a previous diagram for inverting amplifier, we have written same equation, right? But here input was there, that's why there in that equation input V in was here, right? So VA is nothing but V in. So substitute here V in. So minus V in, 0 minus V in divided by Ri equal to V in minus V out upon RF. Now there are two V ins here, right? So we can combine these two terms. So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे कर सकते हैं? ये इसको इधर लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, राइट? हाँ, इसको हम RF को यहाँ लेके जाएंगे, तो आएगा माइनस RF अपॉन Ri इंटू V in. ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू V in माइनस V out, राइट? अभी इन दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे. सो क्या करेंगे हम? वी विल जस्ट रीशफल द टर्म. ये माइनस वी आउट इधर लेके आएंगे तो प्लस वी आउट हो जाएगा, और ये माइनस वाली टर्म राइट साइड लेके जाएंगे, राइट? तो ये वी इन पहले से है, इसमें ये ऐड हो जाएगा, प्लस आर एफ अपॉन आर आई प्लस हो जाएगा इंटू वी इन, राइट है? हाँ मैम. हाँ, जस्ट साइन चेंज होगा क्योंकि ये माइनस वाला है, यहाँ आ जाएगा, ये प्लस होके यहाँ आ जाएगा. नाउ यू कैन टेक कॉमन टर्म वी इन, राइट? तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई.
into V in. We are just taking common V in. So V out equal to 1 plus Rf upon Ri into V in. So V out upon what we are doing? We are calculating gain. So V out upon V in करना पड़ेगा. गेन नॉन इन्वर्टिंग का 1 प्लस हो जाएगा. Yes, non-inverting का gain क्या आ गया? 1 plus Rf upon Ri. This is nothing but gain. So closed loop gain of non-inverting amplifier equal to V out upon V in equal to 1 plus Rf upon Ri. जो कि पहले क्या था? माइनस Rf upon Ri. With माइनस साइन ये भी था इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में प्लस साइन है विथ 1 भी ऐड हुआ है. ओके, सो वॉट एवर रेशियो इज देयर उसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा. दैट विल बी द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. आया समझ में? डेरिवेशन सिंपल है. यू हैव टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस करंट, two currents, you have to make it equal, write the equation for both the currents and then reshuffle the terms. Take out the equation, write the equation in the last step in the form of gain, right? Arrange V out upon V, that will give you gain. So this is all about gain of non-inverting amplifier. Now there will be input impedances and output impedance. है क्या? देखिए नहीं है. Before that, voltage follower is another modification of this non-inverting amplifier. Okay, so इसमें क्या किया है? We have removed both these resistors. यहाँ resistor था और यहाँ resistor था. This is non-inverting only, right? So non-inverting amplifier can be converted, can be modified into voltage follower. Why it is called as voltage follower, I will explain. Okay, we are just मैम सीधा जितना वोल्टेज जाएगा उतना ही वोल्टेज बाहर आएगा. राइट. जितना वोल्टेज यहाँ इनपुट देंगे उतना ही वोल्टेज बाहर आएगा, मतलब आउटपुट में आएगा. राइट, जस्ट रिमूव दिस टू रेजिस्टर्स. सो देयर इज नो डाउट फीडबैक इज देयर बट विदाउट एनी कंपोनेंट. ओके, तो इसका गेन क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ गेन? 1 plus Rf upon Ri. We removed that. So what will be the gain now? 1 only, right? ये रिमूव किया मतलब 0 हो गया, ये है ही नहीं. सो गेन ऑफ द सर्किट विल बी 1. अब जब गेन 1 हो गया मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू 1 हो गया. सो आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट. So that means whatever input we are providing, we are getting same at the output with same sign. No sign inversion here because it is non-inverting amplifier, but it is not amplifier. It is called as voltage follower because output voltage follows input voltage. Whatever input we are providing, we are getting same output. It means whatever input we are providing, we are getting the same at the output. तो मैम इसका यूज कहाँ होगा? इसके पहले वाले का नॉन इन्वर्टिंग वाले इन्वर्टिंग वाले में तो वहाँ दूसरे साथ यूज करते थे. इसका कहाँ होगा? हाँ, इसका एज ए एम्पलीफायर नहीं होता है. इसका यूज होता है टू सेपरेट, टू आइसोलेट टू लोडेड सर्किट. एक यहाँ सर्किट है, एक यहाँ सर्किट है, ये कनेक्टर करके काम करता है. तो इसका जो हाई इनपुट इम्पीडेंस है और लो आउटपुट इम्पीडेंस है, ये लोडिंग कम करता है. तो दो अगर बड़े बड़े सर्किट है तो इसके बीच में ये बफर करके काम करता है. बफर का काम क्या होता है? सेपरेट करना, एब्सॉर्ब करना, कुछ ऐसा ना, शॉक एब्सॉर्बर जैसा काम करता है ना. तो वो लोडिंग अवॉइड करता है. इट अवॉइड्स लोडिंग. ओके, तो कुछ करंट इधर का इधर पास नहीं करेगा, आइसोलेट करता है दो सर्किट को. कुछ करेगा नहीं, इसमें चेंजेस नहीं करता है. इट जस्ट सेपरेट्स टू सर्किट. तो वेरी इंपॉर्टेंट ये इसका वर्क है.
हमको लगता है ये एम्पलीफायर करके नहीं करेगा काम, बिकॉज इसका गेन 1 है, राइट, बट इट इज आइडियल बफर एम्पलीफायर। बोला एम्पलीफायर, बट इट इज नॉट एम्पलीफायर, इट इज बफर to be connected between high impedance sources and low impedance loads, right? तो हमारा सोर्स मतलब लेफ्ट साइड में सोर्स हो गया, इधर लोड हो गया, तो इसका लो इम्पीडेंस रहता है और इस साइड हाई इम्पीडेंस रहता है। तो हाई इम्पीडेंस सोर्सेस को लो इम्पीडेंस लोड के साथ मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे सर्किट होते हैं कि जिसका हाई इम्पीडेंस होता है और लो इम्पीडेंस होता है। अगर इन दोनों सर्किट को हमें कनेक्ट करना है, देन दे विल अफेक्ट देयर वर्किंग। हम ऐसा इम्पीडेंस मैच नहीं हुआ तो वो वर्क नहीं करते बराबर, तो वो इम्पीडेंस मैचिंग का काम ये बफर करता है, वोल्टेज फॉलोअर। तो इसको मैम अगर ये क्या नहीं बोलते हैं, बफर। ये नहीं लगाएंगे तो सर्किट डैमेज हो सकता है क्या? डैमेज होता है, हाँ, इम्पीडेंस मैच नहीं होता है ना दोनों का, दोनों सर्किट का, इसलिए ये बफर का जरूरत है। यस मैम। तो ये हेल्पिंग सर्किट है, मतलब ये वर्किंग में इफेक्ट नहीं करेगा, उसका वर्किंग वो ये सर्किट 1 है सपोज, सर्किट 1 का वर्किंग जो भी है वो वर्क करता रहेगा, इधर सर्किट 2 है, ये अपना काम करता रहेगा, इन दोनों को जोड़ने का काम ये करेगा, बीच का लिंक रहता है ये ना, कनेक्टर। तो सीधा सीधा वायर लेके हम कनेक्ट नहीं कर सकते हाई इम्पीडेंस सर्किट को लो इम्पीडेंस सर्किट के साथ, बीच में अगर ये लगाएंगे तो दैट विल वर्क बेटर। ठीक है, यस मैम। now we will solve problems based on these formulas. First problem, calculate the voltage, ये दिख रहा है ना प्रॉब्लम, calculate the output voltage from the non-inverting amplifier circuit. Now here, if it is not given, you have to identify which configuration is here. तो ये देखना है कि इनपुट कहाँ कनेक्ट है, इन्वर्टिंग को है कि नॉन इन्वर्टिंग को, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। यहाँ तो दिया हुआ है अभी, बट मे बी इन सम प्रॉब्लम्स इट इज नॉट गिवन, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है विद द इनपुट 120 माइक्रोवोल्ट। तो सिंपल है, पहले गेन निकालो, गेन के लिए क्या फॉर्मूला है, ACL, ACL हम यूज करेंगे, क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 प्लस RF अपॉन RI। RF है 240 किलो, RI है 2.4 किलो, so 1 plus RF is 240K divided by 2.4K। किलो ओम कट गया, इसका कितना आएगा, 2400 आएगा शायद ना, 1 plus 100 equal to 101, right? हाँ मैम राइट। Right. So gain we are getting 101. Now what is asked, we have to calculate output voltage. So output voltage equal to gain into input voltage. Gain हमारा है 101 without any sign into कितना है 120 माइक्रोवोल्ट। इन दोनों को करो मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आता है, 1.212 into 10 raised to 4. 1.212 into 10 raised to 4 वॉट, ये दोनों का खाली, Yes, ma'am. और तो ये माइक्रो नहीं लिया आपने, नहीं. ओके, तो माइक्रो के लिए 10 raised to power -6 लिखना पड़ेगा, राइट। नाउ यू सॉल्व दिस, तो 10 raised to power -6 और 10 raised to power 4 -2 हो जाएगा, राइट। सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर, 1.212 into 10 raised to power 2 volt. If I absorb this in this, so I will get 121.2 volt.
एम आई राइट? ओ -2 है, +4 -2 है ना, -6 है ना, तो -2 है। 0.012 हाँ राइट, 0.012 और 12 आगे। ओके, और मिली वोल्ट में भी आप लिख सकते हैं इसको, तो ये -2 है ही, और एक 0 यहाँ से लेना पड़ेगा, तो 12.12 मिली वोल्ट में आएगा, 12.2 मिली वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व, फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा। यस, मिली वोल्ट में 12.12 मिली वोल्ट। नेक्स्ट इज फॉर दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, find the output voltage for an input voltage of 1 volt and -1 volt। तो दो इनपुट वोल्टेजेस दिए हैं, पहले देना है 1 वोल्ट एंड देन -1 वोल्ट, राइट? तो डीसी वोल्टेज हमको देना है। तो राइट डाउन फॉर्मूला, राइट डाउन गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्या है? RF इक्वल टू 10 किलो ओम, RI इक्वल टू 1 किलो ओम, and input first is 1 volt, right, and then -1। so gain का formula है 1 plus RF upon RI। so we have to calculate first gain, substitute RF 10 kilo ohm, substitute RI 1 kilo ohm, ये cancel, gain is 11। now output will be for Vin equal to +1 volt, output equal to ACL into Vin। कितना आएगा? 11 into 1, so that is 11। तो ये तो ओरली सॉल्व हो रहा है, राइट? फॉर Vin equal to -1 volt, V out will be -11 volt। ओके, सिंपल प्रॉब्लम्स आर देयर। ये भी ओरली हो सकता है, 10 के अपॉन 1 के 10 आ जाएगा, 10 + 1 11। गेन 11 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 11 आएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -11 वोल्ट आएगा, राइट? So what is the conclusion here? If we are applying DC voltage, if your DC voltage is positive, output of that is also positive, 11 volt, amplified positive voltage, right? And if it is negative, same sign we are getting, so our voltage, output voltage is negative, right? And in case of AC, we are getting same phase. I have explained it earlier. Understood? Now here it is a different, somewhat different problem. For this non-inverting amplifier, find peak-to-peak output voltage. So here now, instead of giving any value, waveform is given, AC waveform with peak-to-peak, this 1 volt -1 volt, 2 volt is peak-to-peak, right? Peak-to-peak 2 volt. तो क्या करना है? पहले गेन निकालो, गेन मल्टीप्लाई बाय V peak to peak, that will give you output peak to peak voltage, right? यहाँ दिया हुआ है, देखो सॉल्व किया हुआ है, 1 plus RF upon RI, तो 5K is RF, 1K is RI,
दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, 5 के अपॉन 1 के इज 5, 1 plus 5 is 6. So gain is 6. 6 multiplied by peak to peak input voltage. Peak to peak input voltage, V in PP. That means peak to peak input voltage, that is 2 volt. वो कैसे निकाला? ये 0 के अबाउ 1 वोल्ट है, 0 के नीचे 1 वोल्ट है, टोटल कितना हुआ? 2 वोल्ट. So from this positive peak to negative peak, voltage is 2 volt, right? So that is input peak to peak voltage. वो substitute किया. Gain multiply by 2. 6 multiply by 2 is 12 volt. तो 12 वोल्ट कैसे निकालेंगे? 0 वोल्ट के अबाउ 6 वोल्ट, ये आपका 6 वोल्ट हो गया, और 0 के नीचे 6 वोल्ट. Just draw the waveform. That will be your output voltage. Now here it is only mentioned that find peak to peak output voltage. तो इतना किया तो भी चलेगा, ये draw नहीं करने के लिए बोला है. अगर बोला है draw, find and draw peak to peak output voltage, then you draw the output voltage also. That is simple, right? सेम करना है, खाली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है. 1 की जगह 6 दिखाना है, तो प्रोपोर्शनेट यू कैन ड्रॉ. नो नीड टू टेक स्केल एंड ड्रॉ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, ऐसा जरूरी नहीं है. थोड़ा बढ़ाओ, इसके थोड़े प्रोपोर्शन में आपको दिखना चाहिए, उससे बड़ा दिखना चाहिए. ओके, बट यू मेंशन हियर +6 वोल्ट -6 वोल्ट, सो दैट द एम्पलीट्यूड पीक टू पीक आउटपुट एम्पलीट्यूड इज 12 वोल्ट, वो दिखना चाहिए. ओके, ये क्या है देखिए. हाँ, ये थोड़ा और अलग है एग्जाम्पल. फॉर दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फाइंड क्लोज लूप वोल्टेज गेन, दैट इज इजी. RF RI पता है आपको. Then maximum operating frequency also we have to calculate. So two formula they are clubbed here. F max also we have to use with the help of this slew rate. So what is your formula? Slew rate divided by 2 pi V peak. ये peak to peak नहीं है, peak है, PK. Okay. तो अगर आपको peak to peak voltage पता है, आउटपुट पिक टू पिक अगर पता है, उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वी पिक आ जाएगा. वी पिक इक्वल टू वी पिक टू पिक डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज आउटपुट पिक टू पिक वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2. वो चाहिए हमें. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आउटपुट पिक टू पिक वोल्टेज निकालना पड़ेगा. वो कहाँ से निकालेंगे? पहले इसका गेन निकालो. इनपुट पिक टू पिक दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय गेन करोगे तो वी पिक टू पिक आउटपुट आ जाएगा. ओके, ये इनपुट दिया है. सॉल्व करो ये एंड कैलकुलेट एफ मैक्स.
गेन कितना आया? 100 के अपॉन 10 के 10 10 प्लस 1 11। ये बराबर है? यह दिया है लगता है, हाँ ये सॉल्व ही है। ठीक है, वी आउट इक्वल टू कितना आया? गेन इंटू वी पीक टू पीक इनपुट, दैट इज 1। तो ये आपका आएगा 11 वोल्ट, राइट? So V peak will be 11 by 2, that is 5.5 volt. Now substitute and calculate F max. X max किया कितना आया? 0.5 volt upon 014 microsecond per microsecond. कितना? माइक्रोसेकंड नहीं, माइक्रोसेकंड को आपको 10⁻⁻6 करके सॉल्व करना है। ठीक है मैम, खत्म। 2 इंटू 3.14, ये 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है ना, तो 10⁻⁻6 नीचे आएगा। और वी पीक इज 5.5 वोल्ट। अभी सॉल्व करो इसको सब। ये भी वोल्ट है तो ये वोल्ट कट जाता है, और यहाँ का सेकंड है वो 1/2 इज हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में आएगा, फ्रीक्वेंसी है। एनीबडी गॉट द आंसर? कितना आ रहा है? हाँ मैम, हाँ बोलो। 144 1476 hertz. 1476 ऐसा? 68 है मैम इसमें लास्ट में। 1476 नहीं है, 1468 है। 14468। हाँ 14468 है। Yes, ma'am. ऐसा? हाँ मैम। हाँ, तो इसको हम किलो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलो हर्ट्ज। सो 14.4, इन दोनों को राउंड अप करके 647 आएगा, 14.47 किलो हर्ट्ज, राइट? आया सबका ऐसा? हाँ मैम। लेट अस चेक। हाँ, 14.47 किलो हर्ट्ज, राइट? दिस इज योर आंसर। तो इसमें दोनों फॉर्मूला यूज हुआ है, एफ मैक्स का भी और अपना गेन का भी, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। और जो पिछला था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इट वाज क्लब्ड विथ दैट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, है ना, जीबीडब्ल्यू के साथ क्लब करके उसको भी सॉल्व किया था। तो ये थोड़ा बिगर प्रॉब्लम है। तो more problems are uploaded on the classroom. Bandwidth भी है यहाँ देखो। Determine the bandwidth of each of this amplifier. Both op-amps have an open loop voltage gain of 100 dB and a unity gain bandwidth of 3 megahertz. Unity gain bandwidth means GBW is given. GBW equal to 3 megahertz. Now here you can see in first problem, input is applied to, in first diagram input is applied to which terminal? Non-inverting. So it is non-inverting amplifier. In second diagram, input is applied to inverting amplifier, inverting terminal. So it is inverting amplifier.
So both are different. So accordingly, you have to apply the formula. So for this non-inverting amplifier, what we have to calculate, determine the bandwidth. तो बैंडविड्थ के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, GBW का क्या फॉर्मूला है, गेन इनटू बैंडविड्थ, राइट. तो बैंडविड्थ आपको निकालना है, गेन आप दोनों इसमें से निकाल सकते हैं. GBW इज गिवन, गेन यू हैव टू डिटरमिन फ्रॉम बोथ द diagrams and after that substitute in this formula to calculate bandwidth. है समझ में. So first diagram में gain equal to क्या आएगा, 1 plus, because it is non inverting, 1 plus RF upon RI. तो पहले इसमें RF कितना है, 220 किलो ओम and RI is 3.3 किलो ओम. इसको सॉल्व करो, दिया है इधर 66.7. So 1 plus 66.7 equal to 67.7. It is gain, so unit नहीं होगा. Once you get gain, we can substitute in this formula. Bandwidth equal to GBW, gain bandwidth product, divided by gain. GBW is 3 megahertz. Mega means 10 raised to power 6 divided by this gain. ये कैलकुलेट करो, तो ये हो गई इसकी हर्ट्स में बैंडविड्थ. सिमिलरली कैलकुलेट गेन फॉर दिस सेकंड डायग्राम, ये डायग्राम, तो उसका फॉर्मूला विल बी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो माइनस RF अपॉन RI. नाउ सब्स्टिट्यूट 47. ऐसे ही करो और सब्स्टिट्यूट करके निकालो. ये 44.3 है ना, यहाँ पर दिया है 44.3 किलो हर्ट्ज. किलो में एक्सप्रेस करो बिकॉज ये जीरो आगे आएंगे, तो उसको एब्सॉर्ब कर दो इधर. सिमिलरली सॉल्व फॉर सेकंड डायग्राम. गेन कितना आया, -47 आएगा ना मैम. राइट. ये 1 के है तो इजी हो गया, 47 अपॉन 1, ये कट जाएगा. नाउ बैंडविड्थ कितना आ रहा है, 63.83 किलोहर्ट्ज. रॉन्ग है ना. बराबर है. और किसी का आया ऐसा ही, I am ma'am. सेम आया, ठीक है, Yes. इट्स राइट देन. ओके, this way we can solve with the help of these two diagram, these two formula. अभी ये क्या दिया है, ये यूनिटी गेन का है. फॉर दिस डायग्राम it is voltage follower, right? Voltage follower because there is no feedback resistor here, no input resistor. Input is connected to non-inverting terminal, so it is voltage follower circuit. So it shows the circuit of voltage follower. Find the closed loop voltage gain. Gain क्या रहता है इसका, closed loop voltage gain 1. So just you have to mention here 1. And maximum operating frequency.
मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? एफ मैक्स इक्वल टू Leave rate upon 2 pi VP. स्लीव रेट अपॉन 2 पाई वी पीक। सो ये आउटपुट पीक वोल्टेज चाहिए हमें। इनपुट पीक टू पीक दिया है, इससे पहले आपको आउटपुट पीक टू पीक निकालना पड़ेगा और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वी पीक आएगा, राइट। और गेन आपको पता है इसका 1 है, तो आउटपुट पीक टू पीक भी सेम ही आएगा, राइट। सो योर वी आउट पीक टू पीक इक्वल टू 6 वोल्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर, उसका गेन 1 है, ठीक है। अभी इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे इक्वल टू वीपी का आएगा, तो आपका 3 वोल्ट वीपी का आ गया। स्लीव रेट दिया हुआ है हमेशा जो 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड है वो रख, सब्सटीट्यूट करो, वीपी 3 रखो एंड कैलकुलेट एफ मैक्स। कितना आता है बताओ? $26,539. 26,539 और इन किलो हर्ट्ज इट इज 26.539 किलो हर्ट्ज और 54 किलो हर्ट्ज, 26.54 किलो हर्ट्ज आया सबका ऐसा? थोड़ा डिफरेंट है मैम। क्या? 26.525 गया। 0.25 525 525 और किसका क्या आया? चलेगा ना, ये 5 तो बराबर आया है ना, 26.5 तो तक तो बराबर है। इसके आगे थोड़ा, ये 4 है, ये 3 रहेगा, 25 मतलब 3 रहेगा, 26.53 और 26.54, दैट इज ओके। ठीक है, लेट अस सी हियर व्हाट इज द आंसर। 53 है दिया हुआ, चलेगा। ओके, सो यहाँ तक आपको एग्जाम में रहेगा। This is summary what we are learned. Symbol of op-amp, inverting input, non-inverting input, this is output. Non-inverting configuration, which is the voltage gain is given by 1 plus Rf upon Ri. Input impedance, इसका ये इनपुट इम्पीडेंस हमने नहीं देखा था ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है उसका 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू क्या है, एमवी क्या है? नॉन इन्वर्टिंग के बाद डायरेक्ट वोल्टेज फॉलो हो रहा है ना, ओके कुछ एक दो पेज नहीं दिख रहा है यार, इट्स ओके, वो कैलकुलेट नहीं करते हम लोग। जस्ट गेन का फॉर्मूला, स्लीव रेट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट वोल्टेज, इतना आप याद रखो। इसके बाद है समिंग एम्पलीफायर,
3 मिनट्स है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं समिंग एम्पलीफायर, इसका भी डेरिवेशन है बिकॉज just I will just explain what is the concept. So the summing amplifier is inverting amplifier only. If you see here, the inputs, they are multiple inputs V1, V2, V3. They are connected to which terminal? Inverting terminal. So this is inverting configuration, inverting amplifier only, but it is adding different voltages V1 plus V2 plus V3. Okay, so how we are getting the output which is proportional to addition of V1, V2 and V3, that we will see in the next lecture. Okay, so it is nothing but the inverting amplifier only, right? Because of this, हाँ जब ज्यादा इनपुट रहता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, ज्यादा जब इनपुट आपको मल्टीपल इनपुट का एडिशन करना है, बिकॉज दिस ओपैम उसका एक स्पेशलिटी है ना, ओपैम मीन्स व्हाट? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, तो उसमें एक एडिशन भी है. सो हियर द वोल्टेजेस कैन बी एडेड. इट नॉट ओनली एम्पलीफाइज, it can give you addition of voltages also, addition of inputs also. That is one operation. So if we take here some negative inputs also, that is also added. So V1 और suppose इसको sin minus V2 है, तो वो भी ऐड होता है. तो जैसे हम ऐड करते हैं, मैथमेटिकल एडिशन ऑपरेटर है, वैसा ही है ये. तो whatever sign is there, it is added. तो जैसे हमारा ऑर्डिनरी रूल है एडिशन का, इस हिसाब से ही वो वोल्टेज ऐड होता है. तो ये नेगेटिव वोल्टेज है, तो ये पहले इन दोनों का एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ऐसा, राइट? तो साइन आल्सो कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो बराबर आउटपुट में इन सब का एडिशन with their signs is done, right? Addition is done. तो वैसे ही हमें इक्वेशन लिखना है. पहले तीन करंट्स होंगे यहाँ, बिकॉज ऑफ दिस 3 वोल्टेज सोर्सेस, 3 करंट्स विल फ्लो, I1, I2 एंड I3. इन तीनों का एडिशन यहाँ होगा, राइट? एंड देन दैट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस फीडबैक पाथ. तो हमें इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगा? IF इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस 3 करंट्स, I1 प्लस I2 प्लस I3. राइट? तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन चालू होता है. तो नेक्स्ट टाइम वो देखेंगे हम. तो मीनवाइल यू स्टडी